নমস্কাৰ প্ৰাগ বিশেষলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅ'ত মই নবনীতা আৰু এয়া কোভিড-19ৰ সময় কৰোনাৰ সময় এই সময়ত আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ বন্ধ আৰু অনলাইন পদ্ধতিৰে বৰ্তমান চলি আছে শিক্ষা ব্যৱস্থা যি কৰোনাৰ এই ত্ৰাসৰ সময়ছোৱাত যেহেতু পঢ়া শুনাও আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব আৰু তাৰ লগতে আমি সুৰক্ষিত হৈ থাকিব লাগিব গতিকে লালন্স কোচিং ক্লাছৰ আমাৰ হৈতে দুগৰাকীকৈ বিশেষ ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে জেই আৰু এনইইটিৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক প্ৰস্তুত কৰে যাতে তেওঁলোকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এন্ট্ৰেন্স টেষ্টসমূহত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব পাৰে তাৰ বাবে যথেষ্ট তেওঁলোকে চেষ্টা কৰে আৰু ইয়াৰ প্ৰদৰ্শন তেওঁলোকৰ ফলাফলো যথেষ্ট ভাল হৈ আহিছে কিন্তু কৰোনাৰ যেহেতু এই সময়ছোৱাত সকলোৱে বিচাৰিছে যে কম্পিটিটিভ এক্সামছবোৰতো লোক সাকসেসফুল হওক আৰু তাৰ লগতে সুৰক্ষিত হৈ থাকক এতিয়া কেনেকৈ লালন্সৰ এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িছে সেই বিষয়ে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম কিন্তু তেওঁলোকৰ চিনাকি পৰ্ব কৰি দিয়াৰ আগতে মই এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো লালন্স কোচিং ক্লাছেছৰ আৰে বন্ধু মন মাৰি আছো যে কিহৰ ইমান চিন্তা পৰীক্ষা ভাল হোৱা নাই নেকি তোৰ নহয় বন্ধু পৰীক্ষাটো ভালেই হৈছে কিন্তু সৰুৰে পৰা মনত সাজি থোৱা চিকিৎসকৰ সপোন যাৰ পূৰা নহ'ব কিয় নহ'ব ভালকে পঢ়া শুনা কৰ আকৌ কেনেকৈ নহ'ব বন্ধু সৰুৰে পৰা কোচিঙৰ কাৰণে যিখিনি পইচা জমা কৰিছিলোঁ মাৰ চিকিৎসাৰ পিছতে শেষ হৈ গ'ল এতিয়া মই কেনেকৈ নামভৰ্তি কৰিম আৰে চিন্তা নকৰিবি একেবাৰে চিন্তা নকৰিবি লালন্স কোচিং ক্লাছ আছে নহয় তাত মেধাবী আৰু দুখীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীবিলাকক একেবাৰে কম মাচুলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় হয় নেকি বন্ধু বহুত ভাল কথা জনালি থেংক ইউ so much তো পলম কি হয় এতিয়া নামভৰ্তি কৰ লালন্স কোচিং ক্লাছ আৰু তোৰ চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰ গতিকে মেধাবী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে তেওঁলোকে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে মই প্ৰথমতে চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছো আমাৰ মাজত ষ্টুডিঅ' মজিয়াত আছে শ্ৰী ললন কুমাৰ ফাউণ্ডাৰ এনএমটি অফ লালন্স কোচিং ক্লাছেছ লগতে তেওঁ আইআইটি গুৱাহাটীৰ এলুমনি হয় আৰু সিনিয়ৰ ফেকাল্টি হয় কেমিষ্ট্ৰি জেই আৰু এনইইটিৰ বাবে আমাৰ হৈতে আছে এলচিচিৰ আন এগৰাকী ডিৰেক্টৰ মনিকা টেৰম্পি স্বাগতম জনাইছো মই যদি প্ৰথম প্ৰশ্নটো মনিকা টেৰম্পিকে কৰোঁ কাৰণ যেহেতু আপোনালোকে এটা এপ লঞ্চ কৰিছে বৰ্তমান মই আৰম্ভণিতে কৈছো যে কোভিড-19ৰ এই সময়ছোৱাত একাডেমিক সেশনটোও পিছুৱাই গৈছে সৰকাৰ বাধ্য হৈ পৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল স্কুলত যাব পৰা নাই ক্লাছেছ কোচিং ক্লাছেছত যাব পৰা নাই ফিজিক্যাল প্ৰেজেন্স তেওঁলোকৰ নাই গতিকে এতিয়া আপোনালোকে এলচিচিত কেনে ধৰণে সময়ছোৱাত শিক্ষাৰ মানদণ্ড যাতে উন্নত হৈ থাকে কেনেকৈ আপোনালোকে আগবঢ়াই নিছে অকমান জনাব নেকি হয় যেহেতু আমাৰ কেদিনমানটো আমাৰ এফেক্ট হৈ আছিলে প্ৰথম যেতিয়া হৈছিলে তাৰ পিছত আমি বহুত কম সময়তে আৰু বহুত ভাল টিম মিলি আপোনাৰ এপটো ডেভেলপ কৰা হৈছে আমাৰ তাৰ পিছত তাত আপোনাৰ ধৰক লাইভ ক্লাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধৰক আপোনাৰ এভৰিথিং আছে তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে ষ্টুডেণ্টে কৰিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনাৰ ষ্টৰত গৈ প্লে ষ্টৰত গৈ আপোনাৰ এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব লালন্স কোচিং বুলি আছে লালন্স কোচিং এপৰ নামটো আৰু ডাউনলোড কৰিলে আৰু আমাৰ টেকনিক্যাল টিমক আপোনালোকে কনেক্ট কৰিব আমাক কন্টেক্ট কৰাৰ পিছত আমি আপোনালোকক এটা স্পেচিফিক আইডি ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড আমি প্ৰভাইড কৰিম আপুনি হেতুৰে আপুনি লগইন কৰিলে তাৰ পিছত আপুনি তাত ধৰক নিজৰ ডিটেইলছ এন্ট্ৰি কৰিলে আপোনাৰ কোনটো বেচৰ হয় আপুনি মেডিকেলৰ নে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ হয় জেই নীট তাৰ পিছত আপোনাৰ আমাৰ সব বেচৰ স্পেচিফিক আপোনাৰ লাইভ ক্লাছেছৰ আপোনাৰ ৰুটিন দিয়া থাকে টাইম টেবল একৰ্ডিং টু দ্যাট আমাৰ লাইভ ক্লাছেছ আপুনি এটেন্ড কৰিব পাৰিব আৰু লাইভ ক্লাছেছৰ আমাৰ অপচন আছে
তাৰপিছত আমাৰ চেট অপশ্যন আছে তাত ছাপ'জ আপোনাৰ কিবা ঘৰতে পঢ়ি থাকোঁতে আপোনাৰ কিবা এটা ডাউট হ'ল আপুনি সেই চেট অপশ্যনত গৈ আপুনি তাত নিজৰ ডাউট ক্লেৰিফিকেশ্যনো আছে আপুনি তাত গৈ নিজৰ কুৱেশ্যনটো প'ষ্ট কৰিলে আমাৰ যোনজন আমাৰ ৰেচপেক্টিভ টিম আপোনাক ৰেচপণ্ড কৰিব উইদিন ভেৰি শ্বৰ্ট টাইম আৰু তাত ধৰক আপোনাৰ আৰু বহুতখিনি DPPs আপুনি তাত নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰে আচ্ছা হয় তাৰপিছত আছে আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰাৰ লগতে আপুনি ছাপ'জ এটা ছাবজেক্টৰ বহুতখিনি টপিকছ থাকে ছাব টপিকছ থাকে আপুনি যেতিয়া সেই টপিকছ বা ছাব টপিকটো আপুনি ছিলেক্ট কৰে লগতে আপোনাৰ তাত এটাচ্ড ভিডিঅ'ছো আছে এডেড ভিডিঅ'ছ আছে যাতে আপোনাৰ সেইটো আৰু এক্সট্ৰা আপোনাৰ বেনিফিচিয়েল হৈ যায় তাৰপিছত লগতে আপোনাৰ কণ্টেণ্টছবোৰ থাকে PDF আপুনি ডাউনলোড কৰি তাৰ পৰা আপুনি নিজে পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত মানে তেওঁলোকক এটা ভাৰ্চুৱেল মিডিয়ামতে ধৰক ফিজিকেল এট্ৰিবিউটছ যিখিনি প্ৰয়োজন হয় ধৰক ক্লাছত উপস্থিত থাকি তেওঁলোকে যিসমূহ সুবিধা হয়তো পালে হয় সন্মুখত এজন শিক্ষক থাকিলে হয় ফেকাল্টি এজন থাকিলে হয় কোনো ধৰণৰ মনত ডাউট হ'লে ধৰক কেনেকৈ লগে লগে সেইটো ক্লেৰিফিকেশ্যন কৰিব পাৰি চ' ইয়াতে যদিও ফিজিকেলি তেওঁলোক এজন শিক্ষকৰ সন্মুখত নাই কিন্তু এটা ভাৰ্চুৱেল মিডিয়ামতো তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে স্পষ্টকৈ গোটেইকেইটা টপিকছ তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিব ষ্টাডি কৰিব পাৰিব প্ৰেক্টিছ পেপাৰ্ছ আছে বুলি আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে সেইবোৰো তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছো কৰিব পাৰিব লগতে ডাউট ক্লিয়াৰেঞ্চো কৰিব পাৰিব গতিকে এপটো হৈছে লালেন্স কোচিং গতিকে প্লে ষ্ট'ৰত মই আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ প্লে ষ্ট'ৰত আপোনালোকে গৈ লালেন্স কোচিং এপটো ডাউনলোড কৰিব আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ IT চেলৰ পৰা আপোনালোকক স্পেচিফিক ইউজাৰ ID আৰু পাছৱৰ্ড দিয়া হ'ব যাতে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰে আৰু লাইভ ক্লাছেছত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে লগতে আপোনাৰ যিহেতু নিজস্ব পাছৱৰ্ড প্ৰটেক্টেড হয় গোটেইখিনি গতিকে নিজৰ ব্যৱহাৰ আপুনি যেনেকৈ কৰিব বিচাৰে যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে ডাউট থাকে ডেফিনেটলি আই থিংক মই ভাবোঁ যে দিছ ইজ আ ভেৰি গুড এপ্ৰ'চ এণ্ড আ ভেৰি গুড ষ্টেপ আপোনালোকে যিটো লৈছে এণ্ড ডেফিনেটলি যিহেতু বহুত ল'ৰা ছোৱালী হতাশাগ্ৰস্ত হৈ গৈছিল এইটো সময়ছোৱাত যে পৰীক্ষাসমূহ মই যদি এতিয়া কওঁ কিছুদিন আগতে এটা তথ্য যিটো আহি পৰিছে আপোনাৰ JEE কাৰণে জইণ্ট এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যনৰ ইয়াৰ পূৰ্বতে আপোনাৰ তাৰিখ দিয়া হৈছিল যে এপ্ৰিলত মেইন এক্সামটো হ'ব কিন্তু যিহেতু কৰোণাৰ কাৰণে এতিয়া আপোনাৰ পিছুৱাই দিয়া হ'ল জুলাইত হ'ব মষ্ট প্ৰবেবলি পৰীক্ষাটো আৰু আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মছো ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল আৰু ডেট এতিয়া সমাপ্ত হৈছে গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিশ্চয় যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এণ্ট্ৰেন্স দিব বিচাৰিছে তেওঁলোক মেডিকেলৰ এণ্ট্ৰেন্স দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকেও যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব মানে ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ ক্লাছৰুম আমি ঘৰলৈকে লৈ আহিলোঁ so you're turning the homes into virtual classrooms basically that is definitely a nice initiative that you people have taken so if अगर मैं ललन जी से बात करूं आप तो केमिस्ट्री के फैकल्टी हैं आप सब कुछ देखते भी हैं तो कोविड-19 जो है वो मोनिका जी ने अभी बोली दिया है कि इस वक्त में कितना मुश्किल हो चला है इस वक्त को पार करने का लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकता है वो ऑनलाइन वो हमें देख रहे हैं टीवी में केमिस्ट्री ऐसी एक सब्जेक्ट है जो बहुत ही ट्रिकी है मैंने भी पढ़ाई की थी केमिस्ट्री की पर मैं हमेशा प्रैक्टिकल क्लासेस में जब जाती थी और वहाँ पे जब सारे सॉल्ट्स एंड सॉल्यूशंस एसिड अल्कली का जब चैप्टर आता था मुझे हमेशा उसमें प्रॉब्लम्स होती थी सो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप बताएं जो काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर देती हैं फॉर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग टेलीविजन तो सबसे पहले तो मैं सारे स्टूडेंट्स और जो भी व्यूअर्स हैं उनके अच्छे हेल्थ का कामना करता हूं और मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं या 12th का एग्ज़ाम दिए हैं अपना टाइम वेस्ट ना करें और एक आप प्लेटफॉर्म चूज करें जिससे आपको कुछ नहीं हो रहा है तो कुछ होना स्टार्ट हो जाए मीन्स समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग मतलब जैसे हम लोगों ने लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट फेज जो लॉकडाउन का था उनमें हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस लेने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो हम लोग बिल्कुल रुक गए क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आया तो फिर हम लोग देखे कि स्टूडेंट से इंटरेक्ट किए तो वो लोग को भी देख रहे थे कि वो लोग भी पढ़ाई नहीं कर रहे वो लोग भी बिल्कुल लेजी हो गए
तो हम लोगों ने फिर स्टार्ट किया ऑनलाइन इंटरेक्शन प्रोग्राम, और उसके थ्रू अपने सारे ओल्ड स्टूडेंट्स को और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सबको हम लोग ज्वाइन करवाए, और फिर उसमें उन लोग के साथ इंटरेक्शन किए, उनका प्रॉब्लम शेयर किए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम था, सर जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है पढ़ाई बिल्कुल जीरो हो गया है। तो हम लोगों ने उनको फिर डेली क्लास उनको लेना स्टार्ट किया, डेली उनके साथ इंटरेक्शन किया, और उनको जितना भी ट्रिक्स है, जितना भी टिप्स है, जितना भी मोटिवेशन है, हम लोगों ने उसको प्रोवाइड किया। फिर देखे कि जितना भी स्टूडेंट जो लेजी हो गए थे सब में एक मोटिवेशन आ गया, और वापस सब लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए। अभी वो चीज़ बहुत ही सक्सेसफुल जा रहा है, और हम लोग के पास बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। डेली उनका क्लास होता है, हर संडे को उनका टेस्ट होता है, और उनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट उनको दिया जाता है, जिससे उनको कमी मिल पाता है कि हम मेरे में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, किस पोर्शन में हम वीक हैं। तो अभी टाइम है, और हम लोग उस पर रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट को हम लोग छोड़े नहीं हैं, सब पे हम लोग इक्वली मेहनत कर रहे हैं और अच्छा करने का कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन हर स्टूडेंट का आईक्यू सेम नहीं होता। जैसे ये कहा जाता है कि आईक्यू लेवल दरअसल सेम होता है, यूटिलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कहते हैं। तो ऐसे जब स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, अभी आपने कहा 10th के एग्ज़ाम्स जिन्होंने दिए हैं, 11th के या 12th के जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो ऐसे जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं इट इज़ वेरी इजी टू हैंडल देम, लेकिन जो एवरेज हैं, मीडियोकर स्टूडेंट्स हैं, उनको एट पार लाने में कितनी मुश्किलातें आते हैं, और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, यदि स्टूडेंट कैसा भी हो, उसका आईक्यू कैसा भी हो, आईक्यू और ईक्यू दो चीज़ होता है। आईक्यू होता है जो इनबॉर्न होता है, बचपन से होता है सबके पास। ईक्यू होता है इमोशनल क्वोशेंट, विच इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। आप कितना मोटिवेटेड हैं और कितना हाईली डिसिप्लिन है, कितना ऑनेस्ट है अपने आप से। तो यदि आपके पास दो चीज़ है, मोटिवेशन है, आप रेगुलरली मोटिवेटेड रहते हैं, और आपके पास प्रॉपर डिसिप्लिन है कि मेरे को आज 10 आवर्स पढ़ना है और मेरा टाइम टेबल ये है। 10 आवर्स में पढ़ते समय हम थोड़ा भी डेविएट नहीं हो रहे हैं। 10 आवर्स में मेरा 4 आवर्स फिजिक्स का है, 4 आवर्स मैथ का है, 2-3 आवर्स केमिस्ट्री का है। तो हम लोग उसको एकदम पूरा डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, उसमें थोड़ा सा भी डेविएट नहीं हो रहे हैं। डेविएशन का मतलब आजकल जो ज़माना है बहुत ही मॉडर्न हो चुका है, सब लोग के पास पूरा दुनिया डिजिटल हो चुका है। अब जो कंसंट्रेशन होता है पढ़ाई में वो दिनों दिन डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब जैसे हम लोग मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और हम लोग जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम लोग क्या करते हैं, बीच में थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, बीच में गैप ले लेते हैं, मोबाइल में कुछ यूट्यूब में देख लेते हैं, कुछ ऐसे करके गाना सुन लेते हैं। और वो डेविएशन क्या करता है, स्टूडेंट्स को धीरे धीरे बहुत कमज़ोर बना देता है। तो मेरा सारे स्टूडेंट्स को जो भी मेरा बात सुन रहे हैं उनको यही मैसेज है कि आप जितना देर भी पढ़ें, आप 10 आवर्स नहीं पढ़ें, आप 8 आवर्स ही पढ़ें, लेकिन उसको पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें। और आप ये भूल जाएं कि आपका आईक्यू कम है, आईक्यू और डेवलप किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ईक्यू। यदि आप पूरा डेडिकेटेड हैं तो आपका माइंड दिनों दिन डेवलप किया जा सकता है। माइंड कैसे डेवलप होता है उसका भी टेक्निक बताते हैं। जैसे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये माइंड डेवलपमेंट के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हम। আমি ডেফিনেটলি ইকিউৰ কথা আজি যিহেতু গম পাইছোঁ, ইমোশ্যনেল কোশ্যেণ্ট আৰু মাইণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কেনেকৈ কৰিব, হাউ টু মেক ইয়ৰ চেল্ফ এট পাৰ, এইখিনি কথা পাতিম। এটা চমু বিৰতি লৈ লৈছোঁ। বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ বিশেষ, আৰু আজি আমি লালনছ কোচিং ক্লাছেছ অফ ফিউচাৰ ষ্ট্ৰেটেজি সন্দৰ্ভত কথা পাতি আছোঁ। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকক এটা চমু ভিডিঅ' দেখাব বিচাৰিছোঁ, য'ত আপোনালোকে LCC অৰ্থাৎ লালনছ কোচিং ক্লাছেছৰ বিভিন্ন কোৰ্ছসমূহৰ সন্দৰ্ভত গম পাব। কোভিড-19ৰ বাবে ফলাফলবোৰ বাৰু ৰৈ গ'ল, কিন্তু পঢ়া শুনা চলি থাকিব। সেয়েহে লালনছ কোচিং ক্লাছেছত ক্লাছ 11, 12 আৰু ড্ৰপাৰ্ছ বেটছৰ বাবে অনলাইন ক্লাছেছ আৰম্ভ হ'ব জুনৰ 2 সপ্তাহৰ পৰা। এতিয়া ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিঙো থাকিব আৰু বেষ্ট এডুকেশ্যনো সুনিশ্চিত হ'ব। এডমিশ্যনৰ কাৰণে সোনকালে ভিজিট কৰক lallancecoachingclasses.com নতুবা কল কৰক 9577652617ত।
গতিকে বেচেছ আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে এই কথা আপোনালোকে গম পালে 8th and 16th जून যিমানখিনি মই গম পাইছোঁ তো ललन जी आप बोल रहे थे माइंड डेवलपमेंट के बारे में हाँ, माइंड डेवलपमेंट के बारे में मैं बोल रहा था कि जैसे कोई बहुत ही मतलब एवरेज स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है और उसको ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता है, तो मैं भी अपने जब प्रिपरेशन टाइम में था तो मैं भी एक बहुत एवरेज स्टूडेंट था। और जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था, आईटी का तैयारी स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम से मेरे को लड़ना पड़ता था। तो हम लोग को सर ने, गुरु ने सिखाया कि कोई चीज़ टफ नहीं होता है, उसमें आपका एफर्ट, रेगुलर एफर्ट आपको उसमें ग्रेट बनाता है। तो हम लोग से कोई क्वेश्चन नहीं भी बनता था तो हम लोग उस पर बार बार हीट करते थे और उसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं देखते थे। सॉल्यूशन मीन्स उसका जो आंसर होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग नहीं देखते थे। हम लोग उसका क्वेश्चन पे बार बार सोचते थे। इससे क्या हुआ कि और ज़्यादा हम लोग का थिंकिंग डेवलप हुआ और इस वे में आईक्यू डेवलप हुआ। तो ये हम सारे उन एवरेज स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अपने पे भरोसा रखें और एक फाइटर वाला जो एबिलिटी होता है वो अपने पाल के रखें। कुछ भी हो जाए हारना नहीं है, बस चलते रहना है, चलते रहना है। जो आपको लक्ष्य है आपको जरूर मिलेगा, ये मेरे तरफ से आपको गारंटी है। हाँ जो आप कह रहे थे कि लक्ष्य ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर वो बहुत ही टफ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने में अगर वो फेल हो जाए तो क्या किया जा सकता है? टफ प्रॉब्लम कुछ नहीं होता है, हम लोग को उस प्रॉब्लम का बेसिक नहीं पता होता है, टफ होता है। यदि हम लोग उसका बेसिक अच्छे से क्लियर कर लें तो वही प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते होंगे, देखते होंगे पहली बार में बहुत सारा क्वेश्चन टफ लगता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसका थ्योरी क्लियर कर लेते हैं तो कुछ दिन के बाद वो क्वेश्चन देखते ही बन जाता है। ये क्यों होता है? वही चीज़ हम बोल रहे हैं, कोई चीज़ टफ नहीं होता है। पहला बार में हो सकता है आपको कोई चीज़ नया लगे, टफ लगे, लेकिन आप उसको बार बार देखिए वो आपको सुंदर दिखने लगेगा। कोशिश करते रहने चाहिए, यही बात हाँ, आप रेगुलर ट्राई करते रहना। सो रेगुलर स्टडी इज रिक्वायर्ड, Yeah. यही आप बोल रहे हैं It is कि most रेगुलर required. स्टडी इज रिक्वायर्ड सो दैट यू डू नॉट ब्रेक द चेन। हाँ। यहाँ हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, यहाँ हम कोरोना की बात तो नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई में डू नॉट ब्रेक द चेन, बट फॉर कोरोना ऑफ कोर्स यू हैव टू ब्रेक द चेन। तो ये रेगुलर स्टडी इज ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটোৱে কথা তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে। মই মনিকা আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে পিয়াৰ প্ৰেছাৰ এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰেছাৰ বৰ্তমান, যিহেতু আৰু বন্ধৰ এই সময়ছোৱাত বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত যেতিয়া কথা পাতি থাকে তাৰ মাজত বহুতে হয়তো ডিমোটিভেটো কৰিব পাৰে, যিসকলে ধৰক এক যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে নিজৰ যি ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেল এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজকে ৰেডি কৰি আছে। গতিকে আপোনাৰ এডভাইচ কি হ'ব এনে ষ্টুডেণ্টছসমূহক? তেওঁলোক অলৰেডি যথেষ্ট প্ৰেছাৰত আছে যে এটা নেশ্যনেল এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট পাছ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত যদি বন্ধু বান্ধৱৰ পৰাও ডিমোটিভেট হয় বা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা ডিমোটিভেট হয়, হোৱাট উড বি ইয়ৰ এডভাইচ টু ছাচ ষ্টুডেণ্টছ, টু অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ বেচিকেলি? ডিমোটিভেট হ'বলগীয়া ইয়াত একো নাই, আপোনালোকে ছাফিচিয়েণ্ট টাইম পাই আছে। ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা এডভান্টেজ হয়। আপোনাৰ এক্সামৰ ডেট বাঢ়ি গৈ আছে তো আপুনি ছাফিচিয়েণ্ট বহুতখিনি টাইম পাই আছে, আৰু সেইটোৰ কাৰণে আপুনি ধৰক ছাৰে যেনেকৈ ক'লে আপোনাৰ তেনেকৈ প্ৰব্লেমছ মানে বেড, মই কৈছোঁ যে বেয়া সংগ থাকে, বেড কোম্পানী। যেতিয়া when you have bad company with you, you never know that that person is bad for you or is trying to pull you back. So this is like, how do you distinguish and how do you manage your study in that way also, avoiding bad company and studying and moving forward? How to manage that? হয় হয়, এনেকুৱাৰ কাৰণেতো ফাৰ্ষ্ট আপুনি সেনেকুৱা কোম্পানীক এভইড কৰিব লাগিব। হয়, তাৰপিছত ধৰক আপুনি নিজৰ ষ্টাডিজত ফ'কাছ কৰি ৰাখিব লাগিব সেইটোৰ কাৰণে। Okay, so that is very much required. আৰু 11th or 12th পিছত motivate, how to keep yourself motivated? পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা হৈ যায় যে মানে ঠিক আছে এতিয়াতো এক্সামছ হৈ গ'ল, we have 2-3 months time in our hand, এইখিনি সময় ঘৰত বহো বা ফুৰিব যাওঁ, ঘূৰিব যাওঁ। This is what normally happens, যিটো হয় ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ লগত। চ' যদি তেওঁলোকৰ মনত এনেধৰণৰ মানস আছে যে নেশ্যনেল লেভেলৰ এক্সামছ তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰিব, চ' হাউ দে শ্বুড কিপ দেমছেলভছ, হাউ টু কিপ দ'জ ষ্টুডেণ্টছ মটিভেটেড so that they stay concentrated and they concentrate on their goal basically and do not think of any other
things in this period of time? इसके लिए मतलब देखिए 2-3 पॉइंट है कि 10th का एग्ज़ाम देने के बाद 12th का एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। वो सबके साथ है, जब सबको फ्री टाइम मिलता है तो सब लोग, ह्यूमन का टेंडेंसी होता है कि वो रिलैक्स होना चाहता है। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि इस ड्यूरेशन में आपको टेस्ट देते रहना है, टेस्ट में अपीयर होते रहना है, क्योंकि टेस्ट एक ऐसा चीज़ है, आपका जैसा भी फाइनल एग्जाम एंट्रेंस का कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अपने को जो चीज़ भी आपका पढ़ा हुआ है उस पर आप टेस्ट, रेगुलर टेस्ट दें। टेस्ट आपको बता देगा कि आप में कमी है और वो आप में इच्छा मतलब क्रिएट करेगा, इंटरनल विश क्रिएट करेगा कि आपका ये टॉपिक, मान लीजिए केमिस्ट्री में आपका टाइट्रेशन पार्ट वीक है, आप इसको रिवाइज कीजिए। तो ऐसे आप पढ़ने का टेंडेंसी डेवलप कर सकते हैं। और हम स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि जब तक कि आपका फाइनल एग्जाम ना हो जाए तब तक अपना रेगुलर स्टडी आप आइदर 8 आवर्स करते हैं या 10 आवर्स करते हैं, उसको रेगुलर कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं कि आज संडे है, आज 8 में से 5 आवर पढ़ लेते हैं, रिमेनिंग 3 आवर्स कल ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है, स्टूडेंट के लिए गलत है, बाकी लोग के लिए सही हो सकता है, स्टूडेंट के लिए बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक और पहलू जो है वो है पेरेंट्स के रोल को लेकर। पेरेंट्स एंड टीचर्स ये दोनों बहुत ही पाइवोटल रोल प्ले करते हैं बच्चे के करियर को या फिर उसके मन को शेप देने में। द वे यू सेड अबाउट माइंड डेवलपमेंट। सो जब एक बच्चा 10th पास करता है या फिर 10th के एग्ज़ाम्स देता है, उसके बाद अगर वो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो फिर किस तरीके के कोचिंग क्लासेस उन्हें लेनी चाहिए, कैसे स्कूल्स उन्हें यूज़ करने चाहिए, बेसिकली वो पेरेंट्स का रोल होता है। तो किस तरीके से क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, साथ ही साथ जब वो ऐसे कोचिंग्स या फिर स्कूल्स में जाते हैं तो टीचर्स का जो रोल है, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बारे में भी अगर आप थोड़ा बताएं। हाँ, इसके बारे में हम बोलना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट 10th इस बार अपीयर्ड हुए होंगे और बहुत टेंशन में होंगे, किस स्कूल में एडमिशन ले, किस को जगह कोचिंग करें, क्या नहीं करें। तो मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है गुवाहाटी का, उसके बेसिस में मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट बहुत ईयर से मैंने देखा है कि स्टूडेंट कोचिंग भी करता है, स्कूलिंग भी करता है, तो उसका बहुत सारा टाइम आने जाने में और वेस्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस 2 ईयर पहले हम लोगों ने एक कोर्स स्टार्ट किया, इंटीग्रेटेड कोर्स। उसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो स्टूडेंट टाइम सेव करना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी ज़्यादा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए और हम लोग का सक्सेसफुली 2 ईयर कंप्लीट हुआ। अच्छा। उसमें हम लोग जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको स्कूलिंग प्लस कोचिंग, एंट्रेंस का कोचिंग साइमल्टेनियसली प्रोवाइड करते हैं। स्कूलिंग और कोचिंग साथ में ही हो जाता है और टाइम बचाते हैं 8 AM से 3 PM तक। अच्छा। उसके बाद स्टूडेंट का पूरा टाइम आफ्टर 4 to 12 पूरा टाइम उनका सेल्फ स्टडी के लिए बच जाता है। Okay. तो उसमें स्टूडेंट अपने आप को बहुत डेवलप कर सकता है। उसमें हम लोग का पूरा सपोर्ट रहता है, गाइडेंस रहता है, होमवर्क हम लोग देते हैं कि इतना बना के लाना है, तो उसमें स्टूडेंट को बहुत टाइम भी मिलता है। तो और जो दूसरा प्रोग्राम है कोचिंग का, उसमें स्टूडेंट को थोड़ा रिलेटिवली कम टाइम मिलता है। तो हम स्टूडेंट को सजेस्ट करेंगे कि अपने आप को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। आप कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, IIT का, नीट का, तो उसमें आपको मिनिमम 8 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी रिक्वायर्ड है। डेली 8 आवर मिनिमम स्टडी। और एक बस लास्ट सवाल है मेरा, वो ये है कि रोल ऑफ पेरेंट्स, जैसे मैंने कहा था कि बच्चों को एग्ज़ाम्स के टाइम पे किस तरीके से उनको हेल्प करें, उनको मोटिवेट करें और किस तरीके से उनके साथ भी जुड़े ताकि वो भी प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व करने में उनको भी मज़ा आए। ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पेरेंट्स को मेरा यही मैसेज है कि पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को बार बार नहीं बोलना चाहिए, बार बार पीछे पड़े हुए हैं कि तुम पढ़ाई कर लो, ये कर लो, बार बार ऐसे नहीं पीछे पड़ना चाहिए। स्टूडेंट को बस बाहर से ऑब्जर्व करना चाहिए। स्टूडेंट यदि पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उनको बीच में टाइम निकाल के 30 मिनट्स के लिए उनको प्यार से समझाना है कि पढ़ाई तुम्हारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छे से उनको समझाना है, उनको उस चीज़ का सिग्निफिकेंस समझाना है, क्योंकि कोई स्टूडेंट खराब नहीं होता है। हो सकता है कुछ गलत संगति में आके वो वीडियो गेम खेलता रहा हो, तो उनको अच्छे से आपको समझाना है। फिर भी यदि वो नहीं समझें तो उनको जो टीचर क्लास ले रहे हैं उनसे मिलना है या फ़ोन पे बात करवाना है कि स्टूडेंट का ये अपडेट है, पढ़ाई नहीं करता है, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है,
दिन भर गेम खेलते रहता है, तो वो टीचर आपका यदि बात नहीं सुन रहा है तो टीचर का बात जरूर सुनेगा, क्योंकि टीचर एक ऐसा पार्ट होता है जिसे सारा स्टूडेंट डरता है। आज तक हम इतना स्टूडेंट को पढ़ाए हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं मिला है जो मेरा बात टाल दे, सर बोले हैं और नहीं पढ़ाई करेंगे। हम बहुत एवरेज स्टूडेंट को, बहुत बदमाश स्टूडेंट को सुधारे हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ता था, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। गार्जियन परेशान है, क्या करे सर, पढ़ता ही नहीं है, हम लोग तो बोल बोल के थक गए। तो आप लोग बोलिए मत, आप बस ऑब्जर्व कीजिए और प्यार से समझाइए, अच्छा एग्जाम्पल दीजिए कि देखिए ये पढ़ाई किया, IIT किया, आज अमेरिका में है, ये पढ़ाई किया, अच्छा गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, ये पढ़ाई किया, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिससे वो समझ सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेटिंग अ गुड एग्जाम्पल इज़ वन थिंग जो वो कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने बच्चे को समझाने की भी कोशिश कर सकते हैं, पर ज़्यादा डांट फटकार नहीं लगानी चाहिए। एज ऐसा है कि उसको ज़्यादा आप डांटिएगा वो उस चीज़ को निगेटिव ले लेगा। आप बोलेंगे पढ़ो तो सुनेगा, मत पढ़ो उल्टा रिफ्लेक्शन होगा। तो उसको ज़्यादा मत बोलिए, उसको प्यार से समझाइए। ठीक है। तो जो ऐप आप लोगों ने लॉन्च किया था ललन्स कोचिंग, हम उस ऐप के बारे में एक छोटा सा वीडियो है हमारे पास, हम वो भी दिखाना चाहते हैं व्यूअर्स को। গতিকে আপোনালোকে এপটো কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব, কি কি তাত ফিচাৰ্ছ আছে, সকলোখিনি কথা গম পালে। আৰু ডেফিনেটলি যিসকলে এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সাম ইঞ্জিনিয়াৰিং হওক, মেডিকেল হওক, তাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেওঁলোকে মন মাৰিব নালাগে, হতাশ হ'ব নালাগে, কাৰণ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'বই। যদিও অলপ সময় তেওঁলোকৰ নষ্ট হৈছে, ভাল বুলি ভাবি ল'লে হ'ল যে পঢ়িবলৈ আৰু অলপ সময় পালোঁ। গতিকে মই ললন কুমাৰ আৰু মণিকা টেৰম্পেক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইয়ালৈ অহাৰ বাবে। আৰু তাৰ লগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকেও এপটো ডাউনলোড কৰক আৰু আপুনিও নিজৰ শিশুৰ বাবে এক দৰ্শন হওক, যাতে তেওঁলোকেও এক্সেল কৰিব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেডিকেল এক্সামিনেশ্যনছত। চ' ললন্স কোচিং ক্লাছেছ সঁচাকৈ ক্ৰাফটিং ড্ৰিমছ ইনটু ৰিয়েলিটি। থেংক ইউ।